फॉर रूल ऑफ 4 and 8। आप 4 के साथ भी चेक करोगे हर पार्ट को एंड 8 के साथ भी चेक करोगे। 4 के लिए रूल क्या था, यू हैव टू चूज लास्ट टू डिजिट्स। लास्ट टू डिजिट्स को डिवाइड करिए, हम चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, तो इसको मैं 4 से ही डिवाइड करूंगी। 4 1 is 4, 3 remaining, 4 8 is nothing in remainder, so it is yes divisible by 4। next is divisible by 8। इसमें क्या करना है, you have to take last three digits और last three digits है 5 7 2 means पूरा का पूरा नंबर। 8 7 का 56, 1 2 8 1 का 8, तो इसमें 4 remaining है, so it is not divisible by 8। इसमें 4 के लिए आंसर आया yes, 8 के लिए आया no। is it clear? Start doing next part yourself। सारे क्वेश्चन नोट से नहीं देखने हैं आपको। Be quick। I will write after 2 minutes ताकि आप मेरे से आगे हो जाओ और आप खुद क्वेश्चंस करिए। And nothing in new is in this chapter। ये तो पूरा ही आपने रूल्स पहले ही करे होंगे। Be quick। Next part। Be quick। Divisibility by 4। Last two digits कौन से हैं? 52। 4 1 is 4, 12, 4 3 is 12। Is there any remainder? No, so it is 4। Divisibility by 4, then is divisibility by 8। Last three numbers है 352, 8 से divide करिए, 8 4 is 32, 3 remaining, 8 4 is 32, nothing is the remainder, so its answer is again yes। Now last two digits are 0 0। 0 0 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? yes divisible by 4। जहां पे भी 0 0 आ गया वहां चेक करना ही नहीं है, 0 डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट थ्री डिजिट्स लेने हैं आपको डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए एंड दोस आर 500। 8 6 the 48, 2 remaining, 8 2 the 16, 4 remaining। अगर रिमाइंडर बच जाए then your answer is no। Next is divisibility by 4। अगेन यहाँ क्या आ रहा है? 0 0 आ रहा है। ठीक है, अगर 0 0 आ जाए तो वो डिविजिबल हो ही जाएगा, तो इसका आंसर आएगा yes it is divisible by 4। next is divisibility by 8। अब 8 से divisible है या नहीं, तो लास्ट के डिजिट्स लेने हैं आपको और ये भी जीरोस में। अगर जीरोस में हो जाए then there is no need to check, फिर आपको चेक नहीं करना, आप सीधा आंसर लिख सकते हो yes। ठीक है, जब जीरोस हो no need to divide and check, क्योंकि वो आंसर yes ही देगा। सो ट्रिपल जीरो जब आप 8 से डिवाइड करोगे that will be yes। नेक्स्ट पार्ट्स। Next parts are E, F and G। E part, last two digits लेने हैं आपको for divisibility by 4। 59, 4 ones are 4, 19, 4 fours are 16, 3 remaining, so its answer is no। जहाँ रिमाइंडर में कुछ भी बच जाए तो no आएगा। Then for divisibility by 8, last three digits are 159, 8 ones are 8, 7 remaining, 8 nines are 72, 7 remaining, so again its answer is no। Be quick। देखो मैम ने ई तक कर लिए, मेरे से पहले होने चाहिए आपके, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए।
Then is divisibility by 4 for this number. Number is 60. 60 को divide करिए 4 से. 4 1 the 4, 20 remaining, 4 5 the 50. Its answer is yes because there is nothing in the remainder. Then is divisibility by 8. Last three digits will be 560. 8 7 the 56. 0 0. So its answer is yes again. Then is for G part divisibility by 4 चेक करें पहले. तो लास्ट टू डिजिट्स को डिवाइड किया 84 को 4 से 4 2 is 8. Then 4 1 is 4. So its answer is yes for divisibility by 8. Now you have to take last three digits 0 8 4. 8 के साथ डिवाइड करोगे 8 zeros the 0. Then 8 will come down. 8 ones are 8. 4 will come down and remaining is 4. So its answer is no. रिमाइंडर में 0 नहीं आया. Very good, those who have done. Very good. No need to write. It's okay, beta, if you have done. Very good. Have you done next parts also? Next parts भी करने हैं आपको. G तक हो गए. H I and J. So you are so quick. आप लोगों ने कर लिया. Hurry up, finish these parts. Now our next parts. Part H, I and J. Just going to show you both. Yes. Okay, beta, you have done very good. Now is H part. और आप पहले चेक करोगे divisibility by 4. 72 ले लो. डिवाइड करिए 4 के साथ. 4 1 is 4. 4 8 is 32. So its answer is yes. Then is divisibility by 8. 3 digits देने हैं आपको. 0 7 2. 8 zeros is 0. Then 8 zeros is 0. Then 8 9 is the 72. So its answer is yes. H part, yes. I part 1700. So first of all divisibility by 4. Last two digits है 0 0 divide नहीं करना सीधा yes. So then last three digits divisibility by 8 के लिए. So is 700. Okay. Now 8. Remainder is there, so you will write no for this part. Next is J part. First of all, divisibility by 4. Last two digits, 4 1s are 4. 4 2s are 8. 2 remain. So its answer is no. Divisibility by 8. Last three digits, 150. 8 1s are 8. 7 0. 8 8s are 64. 6 remainder. तो इस क्वेश्चन में दोनों जगह नो आया. 2 पार्ट से हमारे जहां दोनों जगह नो आया. एक तो ई पार्ट और एक जे पार्ट. आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो. वेरी गुड, दोज हु हैव डन. वेल डन. वेरी गुड. हरी अप. We will be doing question number 5.
and after that 6, then question number 1. Let us see how many parts we can do for question number 1. Hurry up. Done all, very good. You can try for question number 5. Don't try it because I'm recording. ये recording में भी आपका सारा लिख के आ रहा है और ये cutting हो रही है बेटे. So don't try it, please. It is done. Well done. Very good. Next question. I'm showing you from the book. Statement is write smallest digit and the greatest digit in the blank of each of the following numbers so that number formed is divisible by 3. ऐसे numbers आपको यहाँ fit करने हैं, ठीक है, जो 3 से divisible करवा दे इस number को. यहाँ एक number, एक digit आपको fit करना है. क्या digit आप यहाँ लिख सकते हो? एक smallest लिखना है और एक बार largest लिखना है. कौन सा number आप fit कर सकते हो? You can try yourself on the book and then I will explain. You all have to write down that in the notebook. Then I will be writing. Now our next question. तो आपको यहाँ पे बेटे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट फिट करना है सो दैट जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए किसके साथ? 3 के साथ. ठीक है, तो अब 3 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है. ओके, सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 3. तो इसका हम रूल चला लेते हैं पहले. अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? 3 के टेबल पे आना चाहिए. 4 plus 2 6, 6 plus 7 13, 13 plus 6 19 इसका सम बनेगा. अगर यहाँ पे कोई नंबर फिट करूं तो ऐसा होना चाहिए जो 3 से इसको डिवाइड कर दे, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे कौन सा नंबर फिट करूं सो दैट इसका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, तो अगर मेरे को 3 से डिविजिबल करवाना है तो 19 ये ऑलरेडी है, तो मैं और कितना इसमें ऐड करूंगी सो दैट इट 21 हो जाए, दैट इज 2. अगर मैं इसमें 2 फिट कर दूं 19 plus 2 will be 21 which is divisible by. So this is the smallest digit that I can fit here. अभी इस a पार्ट के लिए आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट डिजिट. कौन सा लार्जेस्ट डिजिट हम फिट कर सकते हैं? जब स्मॉलेस्ट चेक करनी है तो आप 0 1 2 3 चेक करोगे. 0 फिट करोगे तो 19 ही रहेगा, 1 फिट करोगे तो 20 हो जाएगा, तो अगर आप 2 फिट करते हो तो 21 हो जाएगा. जब आपको लार्जेस्ट चेक करना है, जब आपको ग्रेटेस्ट डिजिट चेक करना है, तो इसका ऑलरेडी जो सम है वो कितना बना हुआ है? दिस इट्स सम इज 19. तो अब क्या फिट करोगे सो दैट ये 3 से डिविजिबल हो जाए? तो 19 में और हम कितना ऐड कर सकते हैं? हम चेक करेंगे बड़े डिजिट्स के साथ, 9 के साथ, 8 के साथ, 7 के साथ. अगर मैं यहाँ 9 फिट कर देती हूँ 19 plus 9 हो जाता है, 19 और 9 प्लस करिए 8 28. 28 तो 3 के टेबल में नहीं आता है ना, तो मैं 9 को नहीं ले सकती. अब मुझे और ग्रेटेस्ट डिजिट चेक करना है. 9 के बाद मैं कौन सा डिजिट ले सकती हूँ? अगर 9 नहीं चल पाया देन आई कैन टेक 8. अब 8 को ऐड करके 8 इज इक्वल 27. क्या 27 3 से डिविजिबल हो जाएगा? यस, दैट मींस मेरे को 8 ऐड करना है यहाँ.
सो मैंने ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड कर लिया। सेम ही मेरे को इसमें भी मुझे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ फाइंड करना है। और ये भी 3 का रूल है, 3 का रूल है दैट मींस सम ऑफ डिजिट्स पहले चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी कितना 4 plus 7 11 17 plus 5 22 plus 2 ये बना रहा है 23। ठीक है, अब 23 ये बन रहा है, sorry this is 24 not 23, this is 24। okay, 11 17 plus 5 and plus 2, okay 7, this is 24। now we have to check कौन सा हम स्मॉलेस्ट डिजिट फिट करेंगे। पहले हम स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या चेक करेंगे, वी विल चेक 0 1 2। अगर मैं यहाँ 0 फिट कर दूं तो 0 ऐड करिए इसमें कितना हो जाएगा, ये 24, 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो 0 यहाँ फिट हो। ठीक है, अगर 0 फिट ना होता तो मैं 1 चेक करती, 2 चेक करती, 0 फिट करने पे 24 ही रहा और 24 3 से डिविजिबल। नेक्स्ट इज अगेन बी पार्ट और मुझे चेक करना है 4 7 6 5 ब्लैंक 2 और यहाँ आना चाहिए ग्रेटेस्ट डिजिट। अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या क्या डिजिट चेक करनी है आपको, 9 9 नहीं चला तो 8 8 नहीं चला तो 7। आपने 0 से लेके 9 तक डिजिट चेक करने होते हैं। जब स्मॉलेस्ट लिखा होगा तो 0 से स्टार्ट करोगे, 0 पे ना बने तो 1 2, ऐसे जब ग्रेटेस्ट चेक करना है तो 9 चेक करिए, 9 ना बने तो 8 8 ना बने तो 7। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले चेक करते हैं 9 डाल के, क्योंकि जो इसका सम है दैट इज 24। अगर मैं यहाँ 9 फिट करती हूँ, देखिए 9 फिट किया, इट इज 33। क्या 33 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3 3 1 3, देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 जो है वो एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि 33 3 के साथ डिवाइड हो जाए। Remainder is not left when I divide 33 with 3। ओके बेटा, तो यहाँ 9 सूटेबल बैठ गया तो मैं यहाँ 9 लिख दूंगी आंसर में, और अगर 9 नहीं सूट बैठता तो मैं 8 चेक करती, अगर 8 नहीं सूट बैठता तो मैं 7 चेक करती। आई होप इट इज क्लियर। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, आप पहले इसको नोट कर लो। अंशु मिश्रा, व्हाट आर यू राइटिंग? हाँ, स्टॉप राइटिंग एंड बी अटेंटिव। Some people are lying on the bed, very bad. Hurry up. I hope all of you have done this part. Let us move further for question number 6 now. Here is question number 6. And here you have to write such a digit so that given number is divisible by 11. ताकि जो number है ये 11 से divisible हो जाए। ठीक है, अब 11 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट मींस आपको अपना रूल चेक करना पड़ेगा। रूल है ऑड और इवन का। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट एंड से डिजिट के नीचे लिख देना है ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, और ऐसे ही सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, अब ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को प्लस कर दीजिए। ऑड पे क्या क्या डिजिट्स आ रहे हैं, हरी आप डू योरसेल्फ, ट्राई टू डू योरसेल्फ।
Anybody who can answer, you can type 14. Okay, you have calculated for odd digits. Odd digits में है 9, 3 and 2. 9, 3 and 2. Let us write down. 9, 3 and 2. This is 12 plus 2, 14. और इवन में देखो क्या है, यहाँ है 9, यहाँ है ब्लैंक और यहाँ है 8. 9 और 8 तो आप प्लस कर लो, हो जाएगा 17 प्लस एक ब्लैंक है. अब उस ब्लैंक में कौन सा डिजिट डालूं सो दैट इनका डिफरेंस है वो 11 से टेबल पे आ जाए. अब इस 17 में कौन सा हम डिजिट फिट करें. 17 में जो ब्लैंक है वो भी इवन नंबर की ब्लैंक है. सो विच नंबर कैन बी फिट हियर. और यहाँ कुछ नहीं लिखा, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, यहाँ आप कोई भी डिजिट फिट करके देख सकते हो. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से. 0 अगर मैं फिट करूं, ठीक है, 0 फिट करूंगी तो 17 ही रहेगा. 17 माइनस 14 क्या होगा 3. तो 3 तो डिविजिबल नहीं है 11 से, है ना. अगर मैं यहाँ फिट कर देती हूँ 1 तो ये हो गया 18. 18 माइनस 14 कितना होगा 4, वो भी नहीं आता. अगर यहाँ मैं फिट कर देती हूँ 3, 20 हो जाएगा. 20 और 14 का गैप होता है 6, वो भी डिविजिबल नहीं है. अगर मैंने यहाँ फिट करते हैं 5 तो ये होगा 22. 22 और 14 का गैप कितना होगा 8, वो भी डिविजिबल नहीं है. तो मुझे ऐसा नंबर डालना है सो दैट इनका गैप 11 हो जाए. इनका गैप 11 हो जाए ऐसा नंबर. तो मैं यहाँ 7 फिट करती हूँ. 7 फिट कर रही हूँ तो ये हो जाता है 24. 24 और 12 और 14 को माइनस करो. 24 और 14 को माइनस किया, आंसर इज 10. ये भी डिविजिबल नहीं है. अब मैं फिट करती हूँ 8. अगर फिट 8 करें तो ऐड हो जाएगा 25 और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा. डिफरेंस इज 25 माइनस 14 11 और ये 11 के टेबल में आएगा. तो आपका जो डिजिट है वो क्या फिट होगा, दैट विल बी 8. आप यहाँ 8 फिट करो. आप अपने सारे डिजिट्स यहाँ पे ट्राई करोगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि लार्जेस्ट फिट करना है या स्मॉलेस्ट फिट करना है. तो आपको सारे ही डिजिट्स फिट करके चेक करना पड़ेगा. एक दो क्वेश्चंस करोगे तो आपको जज होने लग जाएगा हम कौन सा डिजिट फिट करें. अभी हम बी पार्ट ट्राई करते हैं. ओके, अब बी पार्ट में पहले क्या करना है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन. नाउ सम ऑफ डिजिट्स at odd places and sum of digits at even places. अब odd places पे हमारा मिसिंग है ना. तो बाकी कौन है, ये तो मिसिंग है 4 और 4 8. 8 के साथ एक और डिजिट फिट करना है. और इवन प्लेसेस पे है 8 9 और 8. 8 9 और 8, ये हो गया 25. अब 25 में और इस नंबर में जो गैप है हमें 11 का चाहिए या 11 के टेबल पे कैंसिल होने वाला चाहिए. तो हम क्या कौन सा नंबर यहाँ फिट कर सकते हैं, लेट अस चेक. अगर 0 फिट करती हूँ तो ये 28 ही रह जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है. अगर मैं यहाँ 1 फिट करती हूँ 9 होगा, डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है. 2 फिट करती हूँ 10 हो गया, डिफरेंस 15 है, 11 से डिविजिबल नहीं है. 4 फिट करते हैं 12 हो गया. अगर 25 और 10 को माइनस करते हो तो वो 13 आता है, उसका कोई फायदा नहीं है. अगर मैं यहाँ 6 फिट करती हूँ तो इसको ऐड करके बनेगा 14 और 25 माइनस 14 करोगे वो फिर से 11 हो जाएगा which is divisible by 11. ओके, तो आपको ऐसा डिजिट फिट करना है सो दैट डिफरेंस हो जाए 11 से डिविजिबल. ओके बेटा, ये एक दो क्वेश्चंस करोगे फिर मैम आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस टिक करवाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस को करने की कि क्या डिजिट हम फिट करें सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 11 आ सकता है. ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, I hope up to this it is clear to you. Now today's last question and that is question number 1. You complete it and then I will show you other side.
number 1 and here you have to check for all the roots. First number जो मैं आपको करवा रही हूँ that is 63921 then other part that we will do 406839 अब इसी का होमवर्क आपको आ जाता है आपका होमवर्क आएगा इस क्वेश्चन का यहाँ मैं बोर्ड पे शो कर रही हूँ आपको ये मैंने बिग नंबर्स लिए एक ये पार्ट मैं क्लास में करवा रही हूँ एक ये पार्ट करवा रही हूँ ये जो बाकी यस नो डिविजिबल है या नहीं ये आप रफ कॉपी पे ट्राई करके बुक के ऊपर ही फिल करो ठीक है 2 पार्ट्स यहाँ हो जाएंगे अदर पार्ट्स यू कैन प्रैक्टिस अब बहुत इजी है ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं फटाफट से लिखते जाओ अगर 0 आ रहा है तो यस 6 आ रहा है तो यस 5 ऑड नंबर आया तो नो 6 है तो यस 0 है तो यस इस तरह से चेक करोगे 5 के लिए क्या चेक करोगे पीछे 0 है या 5 है तो यस लिख लेना बाकियों में नो लिख देना 10 के लिए करोगे 10 के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे अगर जिसके पीछे 0 है सिर्फ वही 10 से डिविजिबल होगा एक तो 990 होगा एक ये नंबर होगा और एक ये नंबर होगा 11 का रूल आपको कॉपी पे करना पड़ेगा 3 के डिजिट्स के लिए तो आप यहीं पे एड अप करके चेक कर सकते हो अगर आप चाहो यू कैन यूज योर होमवर्क रफ नोटबुक ऑल्सो बट ये आंसर्स आपको सिर्फ बुक में लिखने हैं लेट अस सी कौन अपनी नोटबुक के ऊपर ये आंसर्स को ट्राई करके बुक पे फिल करता है सो अभी आपको सब नंबर्स के लिए चेक करना है आपको बोर्ड इज नॉट विजिबल आई होप इट इज क्लियर सो एक पार्ट के लिए चेक करते हैं पहले आप रूल्स चेक करने हैं डिविजिबल बाय 2 क्योंकि इवन नंबर है यस देन आपको चेक करना है 3 सबको ऐड कर दीजिए एंड यू कैन चेक दैट 6 + 3 9 9 and 2 18 18 + 2 and 1 21 तो इसका आंसर भी यस आएगा देन डिविजिबल बाय 4 अब 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स आप लोगे 10 या 10 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा यस तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तो इसका आंसर आएगा नो डिविजिबिलिटी 5 के लिए जब चेक करनी है तब क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट 0 या 5 हो सकता है तो इसका आंसर इज यस देन डिविजिबिलिटी बाय 6 अब 6 में 2 और 3 का रूल आपको चेक करना है यू कैन सी हियर बोर्ड से देखो 2 और 3 दोनों में यस आ रहा है तो 6 के लिए भी क्या आएगा यस देन इज डिविजिबल बाय 8 अब 8 के लिए जब चेक करना है तो लास्ट डिजिट देनी है 210 8 से डिवाइड करिए 8 2 is 16 5 remaining 8 6 the 48 2 रिमाइंडर आ रहा है तो इसलिए 8 का रूल में बना नो और 9 का रूल क्या कहता है सारे डिजिट्स को प्लस कर लो अगर आप डिजिट्स को प्लस करो you complete it up to this because time will be over and this question will be left complete this part then divisibility by 9 sum of digits आपने ऑलरेडी निकाला हुआ 21 है divisibility by 9 प्लस करके 21 बना है जो कि 9 के टेबल पे नहीं आता then is